Good morning, class. Our today's topic is heterotrophic nutrition. So, what is heterotrophic nutrition? Non-green plants which do not possess chlorophyll cannot produce their own food. They depend on other organisms for their food. When an organism depends on other plants or animals for its nutrition, it is called heterotrophic nutrition, and the organisms that exhibit this type of nutrition are called heterotrophs. Okay, it means non-green plants which do not possess chlorophyll, मतलब कि ऐसे non-green plants जो कि chlorophyll नहीं possess करते and cannot produce their own food, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते. They depend on other organism for their food, और वो दूसरे organism पर अपने भोजन के लिए आधारित होते हैं. When an organism depend on other plants or animals for its nutrition, it is called heterotrophic nutrition. So heterotrophic nutrition is the nutrition where organism depend on other plants or animals for their nutrition. This type of plants are called this type of nutrition are called heterotrophic nutrition, and the organism that exhibit this type of nutrition are called heterotrophs. Okay. Next, organisms like animal, bacteria and fungi etc. depend directly or indirectly on green plants for their food. Okay, organisms like animals, bacteria and fungi etc. depend on directly or indirectly on green plants for their food. Hence they are called heterotrophs. इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, हम heterotrophs कहते हैं, क्योंकि कुछ ऑर्गेनिज्म लाइक एनिमल्स, बैक्टीरिया और फंगी वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ग्रीन प्लांट्स पर अपने भोजन के लिए डिपेंड रहते हैं. अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप. ओके, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को फॉलोइंग टाइप में डिवाइड किया गया है. पैरासिटिक प्लांट्स, सेप्रोफाइटिक प्लांट्स, insectivorous plant and symbiotic plant. So first one is parasitic plant. So we will see the definition in short. What is parasitic plants? Plants which live in on other organism and derive them from are called parasitic plants, such as amarbel, मिस्टिलियो आर द कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ पैरासिटिक प्लांट्स. ओके, सो ऐसे प्लांट्स जो अपने भोजन के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पैरासाइट्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल अमरबेन एंड मिस्टिलो आर द कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ पैरासिटिक प्लांट्स. Parasitic plants are of two types. There are two types of parasitic plants, which total parasites and partial parasites. Okay, next one is saprophytic plants. The plants which derive their food from the dead and decaying organic matter are called saprophytes or saprophytic plants. So what is saprophytic plants? The plants which derive their food from the dead and decaying organic matter are called saprophytes. इट मीन्स द प्लांट जो अपने ऐसे प्लांट जो अपना भोजन डेड बॉडीज और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सेप्रोफाइट्स या सेप्रोफाइटिक प्लांट्स कहते हैं. द इंडियन पाइप एंड मशरूम आर द एग्जांपल्स ऑफ दिस प्लांट. इट मीन्स द इंडियन पाइप और जो मशरूम है वो सेप्रोफाइटिक प्लांट्स के एग्जाम्पल्स है. ओके, नेक्स्ट वन इज इंसेक्टिवोरस प्लांट. दीज आर गिवन प्लांट्स. These are the green plants which can prepare their own food but depend on insect for nutrients. इट मीन्स ये ऐसे ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं लेकिन इंसेक्ट पर अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए डिपेंड रहते हैं. दिस प्लांट ट्रैप इंसेक्ट एंड स्मॉल एनिमल्स यूजिंग स्पेशल मॉडिफिकेशन और ऑफ लीव्स. उनकी लीव्स कैसी होती है, स्पेशल टाइप से मॉडिफाई की हुई रहती है जिससे कि वो इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं और स्मॉल एनिमल्स को भी ट्रैप करते हैं जिससे कि उनको न्यूट्रिशन प्राप्त हो. पिक्चर प्लांट, वेनस फ्लैटरिप and bladderwort are some examples of insectivorous plants. Okay, next one is symbiotic plants. So what is symbiotic plants? Symbiosis is an relationship between two living organisms in which both the partners are benefited from each other. Symbiosis is an relationship, मतलब symbiosis क्या है, एक relationship है between two living organisms के बीच का relationship क्या कहलाता है, symbiosis कहलाता है. in which both the partner, जिसमें मतलब दोनों पार्टनर्स क्या करते हैं, दोनों के लिए बेनिफिशियल होते हैं. Lichen is a typical example of such an association between two organisms. Algae
ऑटोट्रॉप्स एंड फंगी सेफ्रोफाइट्स। अलगी एंड फंगी जो है इसका एग्जाम्पल्स है जिसमें 2 ऑर्गेनिज्म एक साथ मिलकर क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। द ग्रीन एल्गी प्रिपेयर्स द फूड। ग्रीन एल्गी क्या करती है, फूड भोजन को बनाती है। एंड फंगी एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल टू सप्लाई टू एल्गी। और फंगी क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है, वाटर और मिनरल्स को किसके लिए, एल्गी को सप्लाई करने के लिए। ओके, द नेक्स्ट इज रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। सो plants get their nutrients from the soil. During this process some nutrients are depleted from the soil. The soil become poorer in nutrients and losing its fertility. मतलब क्या होता है, plants get their nutrition, मतलब plants को सारे nutrients कहाँ से मिलते हैं, soil से मिलते हैं। लेकिन during this process, इस process में some nutrients are depleted from the soil. कुछ न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाते हैं, डिप्लीट हो जाते हैं सॉइल से। द सॉइल बिकम पुअर इन न्यूट्रिएंट। तो सॉइल्स के न्यूट्रिएंट कैसे हो जाते हैं, तब पुअर हो जाते हैं और वो अपनी फर्टिलिटी भी लूज़ करते हैं। सो इट इज़ नेसेसरी दैट सॉइल गेट बैक दिस न्यूट्रिएंट। तो हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सॉइल अपनी फर्टिलिटी, अपने न्यूट्रिएंट्स ना खोए। इसलिए दिस कैन बी डन बाय द फॉलोइंग मेथड। तो इसलिए हमें कुछ फॉलोइंग मेथड्स को यूज़ करना चाहिए। बाय एडिंग फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स। हमें क्या करना चाहिए, सॉइल में फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स को ऐड करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ बाय क्रॉप रोटेशन। क्रॉप का रोटेशन करना चाहिए। इट मीन्स हमें हर बार ही एक ही क्रॉप नहीं बोना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ बाय ग्रोइंग लेग्यूमिनस क्रॉप्स। हमें कौन से क्रॉप्स ग्रो करना चाहिए, लेग्यूमिनस क्रॉप्स लाइक मूंग, ग्राम, पीस एक्सेट्रा आर प्रेजेंट लेग्यूम्स। द रूट्स ऑफ दिस क्रॉप्स हैव नोड्यूल्स ऑन देम. These nodules has symbiotic bacteria. These bacteria have property to convert atmospheric nitrogen into nitrates. Nitrates are soluble in water and can provide nitrogen to plants. Thus, rhizobium can convert atmospheric nitrogen into soluble salt of nitrogen. अगर हम लेग्यूमिनस क्रॉप्स को ग्रो करेंगे तो क्या होगा, जैसे कि लेग्यूमिनस क्रॉप मीन्स मूंग, ग्राम, पी, इससे कि हमारे इसमें क्या प्रेजेंट रहते हैं, लेग्यूम्स प्रेजेंट रहते हैं, जिससे कि हमारी रूट्स और क्रॉप्स कैसी होगी, उनको नोड्यूल्स वो शो करेंगे। सो दिस नोड्यूल्स है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। उसमें कौन सा बैक्टीरिया होता है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होता है, जिससे कि हमारी जो सॉइल होगी उसकी फर्टिलिटी अच्छी होगी, उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट रहेंगे और हमारी क्रॉप्स कैसी रहेगी, अच्छी ग्रो होगी। ओके, योर चैप्टर इज ओवर. Now in next lecture we will solve the exercise questions. Okay, thank you.